In between the noise of our daily lives, in the hustle of modern existence, we find ourselves pulled in countless directions by our responsibilities, our desires, and the demands of the world around us. This external chaos makes it all too easy to lose track of our deeper purpose and the path to inner peace, self-realization, and spiritual awakening. Today's talk will be an attempt to pause, reflect, and reconnect with the timeless truths that lie within us. With our special guest today, we will try and explore the essence of spiritual journey, uncovering how it can guide us through life's challenges, and also delve into the transformative power of self-awareness, which holds the potential to bring lasting peace, clarity, and fulfillment. Please join me in welcoming a revered spiritual teacher, leader, Swami Sailendra Saraswati. Welcome to Kantipur News Talk. Namaskar. It's such a pleasure to have you here. When we talk about inner peace and self-awakening, how do we understand the concept? Do these things happen parallelly, or is it a process, a step-by-step achievement? It's both things. It's a process as well as it's an event. एक प्रक्रिया भी है जो धीरे धीरे होती है और अचानक भी होती हैं, दोनों चीज़ें हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि पानी को गर्म करते हैं तो वह भाप बनता है, evaporation happens, whether it is a sudden jump from the liquid state to air state, gaseous state, or it is a slow journey. I will say it is both. When we are making it warm from 0 degree to 10 degree, 20 degree, 50, 80, 90, 99, but still it is water. At 100 degree temperature, it suddenly becomes vapor. So we can say it is a gradual process which ends up in a sudden transformation. So something like this happens on a spiritual journey. We are meditating, we are becoming more mindful, more aware, more loving, and a titration point comes where suddenly the transformation happens. We are no more the same old person, something new starts. But it's a work. It's work to reach to that point. Yes, it is a work. One has to do something about it. It will not happen by itself. You spend substantial amount of time here in Nepal as well. You do back and forth every year. You meet a lot of people as well. I wouldn't say how awoke we are, but how aware we are about ourselves. Well, it's almost same all over the world. Just 2 months ago, I was in USA. All human beings have similar problems. The physical problems are becoming less and less as we are becoming richer, more understanding, the science and technology is growing. आज से 50 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट था तो फिजिकल इलनेस ज़्यादा होती थी। किसी को विटामिन सी की कमी थी, किसी को आयरन की कमी थी, किसी कैल्शियम की कमी थी। धीरे धीरे वो समझ आ गई, लोगों को पता हो गया क्या खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। फिजिकल इलनेस are becoming less, but mental problems are dominating now. ऐसा समझिए जैसे वायरस का अभी पेंडेमिक हुआ था, ठीक वैसा ही साइकोलॉजिकल इलनेसेस का एक पेंडेमिक सारी दुनिया में है ना। बहुत लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, तनावग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर्ड और एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उतने ही दुनिया में कारागृह बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, युद्ध बढ़ता जा रहा है, मारा मारी खून खराबी बढ़ती जा रही है, उतने ही पागलखाने भी बढ़ते जा रहे हैं. सो वी आर ग्रोइंग, वी आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड, मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर कल्चर्ड, मोर रिच. At the same time, at the level of the mind, heart and spirit, we are falling down. So this is the situation almost everywhere. It may be little different in percentage from individual to individual. Overall, it is the same story. To deviate a little from spirituality away, because you mentioned, and many of your followers of course know that you were a medical doctor before. What was the turning point for you, some incident that happened that you decided to direct your path somewhere else? देखिए, जब मैं लोगों का इलाज करता था तो मैं देखता था कि जो शारीरिक बीमारियां हैं वो तो आसानी से दूर हो जाती हैं, कुछ मेडिसिन से, कुछ सर्जरी से, है ना. मानसिक बीमारियां जो हैं, किसी को हिस्टीरिया की बीमारी है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है,
किसी को ओसीडी है, डिप्रेशन है, इनको दूर करना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, नाउ इट इज़ अ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड एंड देन इट अफेक्ट्स द बॉडी। तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई हम देते हैं, एक दिन के लिए ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कल फिर वहीं पहुंच जाएगा जहाँ था, क्योंकि जिस वजह से उसके भीतर के टेंशन से वो हाइपर टेंशन हुआ है, वो टेंशन तो हमने ठीक किया ही नहीं, उसका तो हमें कारण भी नहीं पता, और क्या करें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। मेडिकल साइंस इज एट ए लॉस व्हाट टू डू विद द माइंड। इवन द साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री, दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन डीलिंग विद द मेंटल प्रॉब्लम्स। तो मेरे मन में यह ख्याल आता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आधा अधूरा है। वी आर डीलिंग only with the physical body, but really we are not able to do anything for the mind. Then I started teaching meditation, and I found I am more satisfied and contented now, because I can tell people what to do exactly, how to make your mind calm and quiet, and you can get freedom from the tension and negative emotion, and then many things will be solved. So you're saying the problems that we face in our physical body can also be treated with mind? Yes, physical body get affected from both sides, from outside external factors and from inside the mental factors. समझिए पैर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इसका इलाज सर्जरी से होगा, इमरजेंसी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है उससे होगा। ये भीतर से नहीं आई समस्या, बाहर से आई है। भीतर से जो समस्या आई, जैसे मैंने कहा, अगर तनाव है बहुत ज़्यादा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। किसी के भीतर डर है, फियर, फोबिया, एप्रीहेंशन, उसका हार्ट रेट तेज़ी से धड़क रहा है बहुत, उसको हो सकता है हृदय की खराबी हो जाए। किसी को चिंता है, एंग्जाइटी है ना, उसके पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, डुओडेनल अल्सर हो जाएगा। हम कितनी ही कोशिश करें पेप्टिक अल्सर को ठीक करने की मेडिसिन से, टेम्पररीली रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके भीतर का एंग्जाइटी तो अभी भी मौजूद है, उसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो जिस वजह से पेप्टिक अल्सर हुआ, जिस वजह से हार्ट अटैक हुआ, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसका तो हमने इलाज किया नहीं, ऊपर ऊपर से हमने सिम्टोमेटिक रिलीफ कर दी। तो दैट इज़ नॉट कंप्लीट क्योर। आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन की है हेल्थ की, उनका कहना है हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए वेल बीइंग एट द लेवल ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 4 डायमेंशंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। हम केवल फिजिकल हेल्थ का ख्याल करके पूरे मनुष्य को स्वस्थ नहीं कर सकते। तो कुछ बीमारियां भीतर से आ रही हैं, है ना। किसी व्यक्ति के मन में इतनी ज़्यादा थिंकिंग चल रही है कि वो सो नहीं पाता, नींद उड़ गई उसकी। अब नींद गड़बड़ हो गई तो इसकी वजह से और भी बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा फिजिकल बॉडी में। हम ऊपर से ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो सफल नहीं होगी, उसको भीतर से ही ठीक करना होगा। उसके इतने विचार क्यों चलते हैं, अगर वो ध्यान सीख जाए और निर्विचार की अवस्था उसको मिल जाए तो उसको गहरी नींद आने लगेगी। गहरी नींद आने लगेगी, उसकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग्स आल्सो एज वेल एज फ्रॉम द इंटरनल थिंग्स। बाहर से एक बैक्टीरिया आ गया तो नेचुरली इसका इलाज एंटीबायोटिक से होगा लेकिन भीतर से मन से कोई चीज़ आई है, फियर आ गया, तो इसका इलाज बाहर से हम नहीं कर सकते। उस व्यक्ति का हृदय तेज़ी से धड़क रहा है ना, हम बाहर से दवाई देंगे पल्स रेट कम करने की, पल्स रेट कम हो जाएगी, लेकिन उसके भीतर का फियर तो मौजूद है, फोबिया मौजूद है। क्या उसको भीतर से ठीक कर सकते हैं? तो मेडिटेशन ट्राइज टू हील फ्रॉम द इनसाइड एंड मेडिसिन ट्राइज टू हील फ्रॉम आउटसाइड। एक्चुअली दीज 2 वर्ड्स मेडिसिन एंड मेडिटेशन come from the same Greek root which means healing. So one heals from outside and one heals from inside, and combination of both will be the best one. So I felt some kind of failure in treating mental problems by using medicines, and then I decided to drop that job and help people on a larger scale, and that is very easy. And since 25 years I am doing that. So when Siddhartha Gautama abandoned his material life to go into the path of spirituality, Osho and even you advocate for a balance between the material world and the spiritual realm. Yes. In today's world, in the hustle and bustle that we are, how possible is it for a commoner
इट्स नॉट ओनली पॉसिबल बट इट इज़ मोर अर्जेंटली नीडेड। पुराने ज़माने में लोग शांत थे, तनावग्रस्त नहीं थे, चैन की नींद सोते थे, आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, बोलते थे, एक प्रेम था, भाईचारा था, है ना, गांव-गांव में ऐसा था। तब इतनी ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज के तनावयुक्त वातावरण में स्पीड हमारी बढ़ गई है, बहुत तेज़ हो गई है, उतने ही हम बेचैन और परेशान हो गए हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे रिचनेस आई, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, रिचनेस आने के साथ साथ हमारे जीने की दिशाओं के अल्टरनेट्स बढ़ते जाते हैं। नाउ वी आर मोर फ्री। पुराने ज़माने में इतनी फ्रीडम नहीं थी, हमारे पास चॉइस नहीं थी। एक कारपेंटर का बेटा है वो कारपेंटर ही होता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। एक दुकानदार का बेटा दुकानदार होता था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण पंडित बनता था, छत्री का बेटा छत्री सैनिक बनता था। देयर वाज नो चॉइस। नाउ इन टूडेज वर्ल्ड तानाशाही चली गई, प्रजातंत्र आ गया, हमारे पास बहुत चॉइस हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, सीए भी बन सकता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बन सकता है, पेंटर भी बन सकता है, म्यूजिशियन भी बन सकता है। नाउ देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग इज पुलिंग यू अपार्ट। तो आज मनुष्य जितने तनाव में है, इतने तनाव में कभी नहीं था। पुराने ज़माने में एक बाल विवाह की प्रथा थी, जब बच्चों को पता ही नहीं था कि विवाह क्या होता, तब उनकी शादी हो गई थी और फ्रीडम कुछ नहीं थी, जिससे शादी हो गई, बात ख़त्म, इसमें कोई चॉइस नहीं थी। आज वैसा संभव नहीं है। अब हमारे पास बहुत विकल्प हैं। हर लड़के की 4-6 गर्लफ्रेंड हैं, हर लड़की के 4-6 बॉयफ्रेंड हैं, किससे शादी करे ना करे, देयर आर सो मैनी अल्टरनेट्स। जितनी हमारी चॉइस बढ़ती जाएंगी हम उतनी तनावग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ अच्छा लगता है, दूसरे में भी कुछ अच्छा लग रहा है, तीसरे में कुछ अच्छा लग रहा है, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, उसके भी नेगेटिव। हम क्या करें क्या ना करें कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे पास अक्सर स्कूल के बच्चे आते हैं जो स्कूल पूरी कर चुके, कॉलेज में जिनको जाना है, वो अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम क्या करें। मम्मी कह रही है डॉक्टर बनो, पापा कह रहे हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बनो, टीचर्स से सलाह ली है, वो कह रहे हैं तुम सीए बनो। मैं उससे पूछता हूँ तुम क्या चाहते हो, कहता मेरी समझ में नहीं आता, आई एम हाईली कन्फ्यूज्ड। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। पहले सब कुछ तय था, चम्हार के बेटे को चम्हार बनना है, कुम्हार के बेटे को कुम्हार बनना है, दुकानदार के बेटे को दुकानदार बनना है। देयर वाज नो चॉइस। तो जैसे जैसे फ्रीडम बढ़ेगी, भविष्य में और भी ज़्यादा विकल्प बढ़ते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है कि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा तनाव है, टेंशन है, इसलिए आज की दुनिया में ध्यान और ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत अशांत हो गए हैं, अशांति का एक पेंडेमिक आया हुआ है। एवरीबडी इज फीलिंग रेस्टलेसनेस, डज नॉट नो व्हाट टू डू। आज की दुनिया में भगवान बुद्ध जैसा ध्यानी होना और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके ज़माने में इतना महत्वपूर्ण नहीं था, आज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम पागल होने की कगार पर हैं। दुनिया में पागलों की गिनती बढ़ती जा रही है ना। अमेरिका जैसे देश में जहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा लिबर्टी है और चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई व्यक्ति एक जॉब ज्वाइन करता है, वो 6 महीने बाद चेंज कर लेता है, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब। एक शहर में 3 साल हो गए उसको रहते रहते वो दूसरे शहर में चला, एक शहर में भी नहीं रहना। कुछ भी निश्चित नहीं रहा, सब चीज़ें बदल सकती हैं। पुराने ज़माने में ऐसा संभव नहीं था। 99% पीपल यूज्ड टू डाई इन द सेम विलेज इन विच दे वर बॉर्न, इन द सेम हाउस वेयर दे वर बॉर्न। देयर वाज नो चॉइस। तो चॉइस बढ़ने के साथ साथ हमारे मन में टेंशन और तनाव बढ़ेगा। इसलिए आज मेडिटेशन रूपी मेडिसिन की जितनी ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। पहले इतने लोग पागल नहीं होते थे, पहले इतने लोग विक्षिप्त नहीं होते थे, पहले इतने हिंसक भी नहीं थे। पिछली सदी 20th सेंचुरी वाज द मोस्ट एजुकेटेड सेंचुरी ऑफ द होल ह्यूमन हिस्ट्री। इसमें 2 भयंकर विश्व युद्ध हुए। ये एजुकेटेड आदमी ही कर सकते हैं, जंगल में रहने वाला आदिवासी नहीं कर सकता, उसके पास परमाणु बम नहीं होते, है ना। ये सोफिस्टिकेटेड कल्चर्ड आदमी ही कर सकता है। अब हम और आगे आ गए 21st सेंचुरी में। अब अगर 3rd वर्ल्ड वार होगा, दैट विल बी द फाइनल एंड द लास्ट वर्ल्ड वार, नोबडी विल सर्वाइव। सो मेनी डेंजरस वेपन्स हैव बीन क्रिएटेड, पर्टिकुलरली द बायोलॉजिकल वेपन्स, है ना। तो आज शांति की, ध्यान की, स्पिरिचुअलिटी की जितनी ज़रूरत है इतनी पहले कभी नहीं थी।
पहले बीमारी छोटी सी थी, किसी किसी को होती थी, तो कभी कभार कोई ध्यान कर लेता था, काम चल जाता था। अभी कभी कभार 2-4 लोगों के ध्यान करने से नहीं चलेगा, तो भगवान बुद्ध जैसे आदमी जंगल चले जाते थे, वहाँ शांति से बैठ के ध्यान कर लेते थे। आज 8 अरब आदमी दुनिया में है, अगर ये सब जंगल चले गए, हिमालय पे चढ़ गए, तो हिमालय की बर्फ़ पिघल जाएगी वहाँ भी सारा पॉल्यूशन हो जाएगा। आज हमें कुछ और उपाय करने होंगे, और ओशो ने वही किया। उन्होंने कहा तुम जहाँ हो, जो काम कर रहे हो, जो तुम्हारी जिम्मेवारी हैं, फैमिली की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभाते हुए तुम वहीं ध्यान करना सीखो। 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल लो मेडिटेशन के लिए, एंड दैट विल चेंज योर होल लाइफ, है ना। There is no denying for many people that spirituality is important, especially today. But what would you say to someone who is having a difficult time meditating, allocating time and bringing it into a discipline? If you understand the importance of it, then it comes in the life by itself. अभी कोविड फैला था, हमको पता चल गया कि मास्क लगाना इम्पॉर्टेंट है, सब लोग मास्क लगाने लगे, है ना। हमको इम्पॉर्टेंस किसी चीज़ की पता चल जाए, फिर हम उसका यूज़ करने लगते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, इसकी वजह से मैं बीमार हूँ, तो मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाऊंगा, मुझे पता है ना। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की इम्पॉर्टेंस अभी लोगों को नहीं पता। वो उसको रिलेट करते हैं रिलीजन्स से, सो कॉल्ड रिलीजन्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सो मैनी. Of course, people who are following those religions, they are blind believers, they are unscientific. उनके भीतर सोच विचार नहीं है, तीव्र बुद्धि नहीं है, वो अंधविश्वासी हैं. उनको देखता है जब समझदार पढ़ा लिखा आदमी, तो वो उनसे दूर हटना चाहता है. तो somehow this connection between the so-called religions and spiritualism should be understood that there is no connection. Spirituality is something which you are doing inside in your spirit, in your आत्मा. हिंदी में स्पिरिचुअलिटी को अध्यात्म कहते हैं. अध्यात्म का मतलब है आत्मा से संबंधित. तो इसका बाहर के किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च से कोई लेना देना नहीं है. किसी बाहर के क्रियाकांड से, शास्त्र से, ग्रंथ से कोई संबंध नहीं है. ये तो अपने भीतर की बात है. मैं अपने भीतर ज़्यादा जागरूक कैसे हो जाऊँ? मोर मेडिटेटिव, मोर अवेयर, मोर अलर्ट, मोर सेंसिटिव. मेरे हृदय में दुर्भावनाएं हैं, मुझे गुस्सा आता है, घृणा होती है, किसी से दुश्मनी हो जाती है, जलसी होती है. मैं इससे कैसे मुक्त हूँ? ये मेरे भीतर का जहर है. तो मुझे अपने भीतर एक सागर मंथन करना होगा और विष और अमृत को अलग अलग करना होगा. अगर मुझे समझ में आ जाए कि मेरे भीतर की बीमारी है, क्रोध मेरी मेंटल सिकनेस है, इट इज़ नॉट समथिंग पॉजिटिव एंड हेल्दी. घृणा की भावना, जलसी की भावना, दिस इज़ नॉट समथिंग हेल्दी. अगर ये समझ में आ जाए तो मैं अपने आप ही इससे दूर हटने लगूंगा, है ना. अभी हमको पता ही नहीं, हम सोचते हैं दिस इज़ नॉर्मल बिकॉज एवरीबडी अराउंड अस इज गेटिंग एंग्री, एवरीबडी अराउंड इज फुल ऑफ एम्बिशंस एंड ग्रीड एंड अटैचमेंट एंड जेलसी, सो वी थिंक दिस इज़ नॉर्मल. ऐसा समझें, आदिवासियों के एक इलाके में अफ्रीका में हर बच्चा पैदा होते ही से अंधा हो जाता. वहाँ कोई खास मक्खी है जो कीटाणु आँख में लगा देती है और अंधे हो जाते हैं. पूरा गांव अंधा है. बहुत बचपन में एक बार उनकी आँख खुली थी, उसके बाद फिर वो अंधे हो गए. उसी में बड़े हुए. कोई समझता ही नहीं कि अंधापन एक बीमारी है. वो समझते हैं ये तो नॉर्मल है, सब लोग ऐसे ही हैं. उनको पता ही नहीं आँख क्या होती है, देखना क्या होता है. हमारी स्थिति भी ऐसी, सब तरफ दुखी लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, डिप्रेस्ड लोग हैं, भांति भांति के ऑब्सेशन में हैं. हम सोचते हैं दिस इज व्हाट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज, द एवरेज पर्सन. तो मैं भी एवरेज हूँ, नॉट समथिंग रॉन्ग. हमें को इस बात के प्रति सजग कराना होगा कि हमारे भीतर जो दुर्भावनाएं हैं, जैसे मैंने कहा क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल. एम्बिशन, इट इज़ नॉट टू बी प्रेज्ड, इट शुड बी कंडेम्ड. अभी तो हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं कि बी मोर एम्बिशियस, तुमको आगे निकलना है, दूसरों को पीछे पछाड़ना है. नहीं, हमको कहना होगा कि एम्बिशन इज ए काइंड ऑफ मेंटल फीवर, वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट. तुम्हें किसी के आगे नहीं निकलना है, तुम्हें अपनी फ्लावरिंग करनी है, अपनी आत्मा की उन्नति करनी है. इसकी जागृति फैलाना सोशल मीडिया का
टेलीविज़न का, अखबार वालों का, मैगजीन वालों का काम है एक नई जागृति लाएं, ए न्यू अवेकनिंग, ताकि हमको पता चले कि हमारे भीतर बहुत कुछ गड़बड़ है। आई एम नॉट ए नॉर्मल पर्सन, है ना। यदि मुझे गुस्सा आता है और मेरा दिल होता है किसी की गर्दन दबा दूं, तो आज नहीं मैं कल दबा ही दूंगा, है ना। आज जिन्होंने किसी का मर्डर किया है, ये अचानक नहीं कर दिया है, उनके भीतर भी गुस्सा आता था, लेकिन वो समझे कि तो ठीक है, नॉर्मल है, उस आदमी ने गलती की है, उसको मजा चखाना है, उससे बदला लेना है। और समाज ने, शिक्षा ने, सबने प्रवोक किया कि प्रतिशोध लेना, बदला लेना एक अच्छी चीज़ है। सारी फिल्म की कहानियों ने हमको बताया कि हीरो जो है वो बदला लेता है, ही टेक्स रिवेंज, दैट्स व्हाई ही इज़ हीरो। बचपन से हम ऐसी कहानियाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा मन भी परवर्टेड हो गया है और हम सोच रहे हैं कि हम किसी का मर्डर कर देंगे तो हम बड़े हीरोइक इमेज हमारी हो जाएगी। हमको कहना होगा, सिखाना होगा कि नहीं, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल, यू आर मेंटली सिक and you have to get rid of this sickness. So meditation can cure, but the main thing is people do not know, they do not understand that they are sick, and mentally most of the people are sick. It's a tragedy that regardless of the past experience and global efforts to maintain peace, we are witnessing wars in few regions of the world. How do you go about it with it? देखिए, अतीत से जिस प्रकार की हमारी शिक्षा चली आ रही है, एजुकेशन सिस्टम, दैट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन एंड कंपटीशन। द होल एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड अपॉन, हमने छोटे छोटे बच्चों के मन में वो जहर भर दिया है। फिर वही चीज़ व्यक्तिगत रूप से आएगी। ऑन द स्मॉल लेवल वी विल बी एंग्री, समबडी विल किल समवन। थोड़े और बड़े लेवल पर वो सांप्रदायिक दंगा फसाद बनेगा, और बड़े लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पे वो इंटरनल वार बन जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, और बड़े लेवल पर दो राष्ट्रों के बीच में झगड़ा होगा, इंटरनेशनल वर्ल्ड वार हो जाएगा। इट इज़ द सेम थिंग। तो उसको हमको बेस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हम वो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की, शांति की कामना नहीं कर सकते, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद सारे देशों का सम्मेलन हुआ और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई कि हम विश्व शांति करेंगे। कुछ नहीं हुआ, 20 साल भी नहीं बीते थे, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। फिर यूएनओ बन गया, शांति लाएंगे, शांति लाएंगे, आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। इट होल थिंग वेंट इनटू ड्रेन, नथिंग हैपन्स। नहीं, राष्ट्र के तल पर, अंतर्राष्ट्रीय तल पर, समाज के तल पर हम शांति नहीं ला सकते, व्यक्ति के तल पर लानी होगी, एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। अगर व्यक्ति अशांत है, गुस्से में है, हिंसा करना चाहता है, तो हम बड़े तल वाली हिंसा को नहीं रोक सकते। वो तो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट है ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना। हम सब क्रोध से भरे हुए हैं, तो नेचुरली हमारा जो परिणाम होगा एक वो बड़ा क्रोध होगा, है ना। तो विश्व के स्तर पर शांति लाने का उपाय काम नहीं आएगा, आज तक नहीं आया, है ना। इस बात को हमें समझना चाहिए। इट इज़ आवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट वी कैन डू। वी कैन डू समथिंग अबाउट आवर सेल्फ। तो मैं नहीं कहता विश्व शांति कैसी होगी, मैं तो आत्म शांति की बात करता हूँ, वह ध्यान के द्वारा संभव है। There are so many influential spiritual teachers that many of us have witnessed, but there are also instances where spiritual teachers themselves have been seen engulfed in controversies. Even here in Nepal, we have such incidents. What do you think of it? देखिए, स्पिरिचुअल टीचर और रिलीजियस टीचर, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखें, है ना। द सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स, दे आर एज गुड एज पॉलिटिशियन, और यू कैन से एज बैड एज पॉलिटिशियन, है ना। उनकी एक संस्था है, बहुत बड़ा संगठन है, उसकी व्यवस्था वो संभाल रहे हैं और बहुत लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रिलीजियस लीडर्स का यही काम रहा है। वो किसी को प्रेम और भाईचारा नहीं सिखा रहे, किसी को शांत होना नहीं सिखा रहे, उनको खुद ही ध्यान नहीं आता, वो खुद भी शांत नहीं हैं, उनके भीतर भी एम्बिशन है ना, वो भी लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। सच पूछो तो दुनिया में जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो रिलीजन को लेकर हुए हैं, रिलीजियस लीडर्स ने लड़वाया है। सेकेंड वर्ल्ड वार का जो सेंट्रल पॉइंट था, एडोल्फ हिटलर, वो कट्टरपंथी ईसाई था, उसने 60 लाख यहूदियों का मर्डर करवाया। 60 लाख, 6 मिलियन, बिग नंबर। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने ईसा मसीह की हत्या की थी, सूली चढ़ाया था। 2000 साल से वो बदला ले रहे हैं, यहूदियों को मार रहे हैं। अकेले हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। इसी हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, है ना। भारत में जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ है पौराणिक,
कहानियों को अगर हम माने, जिसमें 4 अरब लोग मारे गए, उसका नाम है महाभारत, और उसको कहा जाता है धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अगर युद्ध करना धर्म है तो फिर अधर्म और क्या होगा? तो हमको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। धर्म जो है वो एक प्रकार का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे पॉलिटिक्स की पार्टी होती है ऐसी, और इसलिए उनकी आपस में मिली भगत चलती है ना। पॉलिटिकल पार्टी एंड रिलीजियस पार्टी वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। Spirituality is something else. It has nothing to do with others. It is not an institution. You have to take care of your own consciousness, your own self. जब मैं अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देता हूँ, अपनी आत्मा की उन्नति करता हूँ, मैं ज़्यादा होशपूर्ण और ज़्यादा प्रेमपूर्ण व्यक्ति बनता हूँ। यह स्पिरिचुअलिज्म है। इसका बाहर के किसी संस्था संगठन से कुछ लेना देना नहीं। So called religious leaders again and again they are found to be hypocrite. बारंबार पता चलता है कि वो धोखा दे रहे थे, पाखंड कर रहे थे, और उसकी वजह ये है कि उन्होंने ऐसे आदर्श खड़े किए हैं जो कि इम्पॉसिबल हैं पूरा करना। उस आदर्श का भी दिखावा करते हैं, भीतर कुछ बाहर कुछ हो जाते हैं। पाखंड का मतलब होता है समथिंग एल्स इनसाइड, समथिंग एल्स आउटसाइड। ऊपर ऊपर आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और भीतर उसका उल्टा चल रहा है। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो भीतर का बाहर निकलेगा। It was pleasure having you here. Thank you so much for your time. Thank you also. And thank you to all our viewers for joining us today. We hope this conversation helped rediscover the quiet wisdom that resides within and find inspiration to live with greater awareness and a purpose as well.